سیلاب کی تباہ کاریاں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کل آل پارٹیز کانفرنس بلا لی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اتحادیوں سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت۔ ملک میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق امور پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے کے لیے روانہ۔ جعفر آباد میں بحالی کے کاموں کا جائزہ لیں گے اور سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے۔ متاثرین کی امداد اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کی گئی کوششوں پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ سیلاب سے ملک بھر میں سینکڑوں شاہراہیں اور پل ٹوٹ گئے۔ 149 پلوں کو سیلاب سے نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں کوئٹہ کراچی نیشنل ہائی وے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند۔ ڈیرہ غازی خان لورالائی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ سندھ میں 2328 کلومیٹر، بلوچستان میں 1000 کلومیٹر سڑکیں تباہ۔ سیلاب اور بارشوں سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 119 افراد جاں بحق، ہلاکتوں کی تعداد 1033 ہو گئی۔ ملک بھر میں اب تک کل زخمیوں کی تعداد 1527، جاں بحق افراد میں 456 مرد، 207 خواتین اور 348 بچے شامل۔ NDMA کی رپورٹ جاری۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں پر عالمی برادری نے اظہار یکجہتی کر دیا۔ متاثرین کی مدد کرنے کے عزم کا اعادہ۔ کینیڈا، فرانس نے مدد کرنے کو تیار۔ OIC کا جانی نقصان پر اظہار افسوس، ہنگامی امداد کی اپیل کر دی۔ آذربائیجان کا بھی پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان، $20 لاکھ فراہم کرے گا۔ امداد کی رقم سیلاب متاثرین کی بحالی اور دیگر کاموں پر خرچ کی جائے گی۔ اور ایشیا کپ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کا ہائی وولٹیج ٹاکرا آج ہوگا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب کی تباہ کاریوں پر آل پارٹیز کانفرنس بلا لی۔ APC کل وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اتحادیوں سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ APC میں ملک میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق امور پر مشاورت کی جائے گی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی کاموں پر بھی غور کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI کو بھی APC میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقے جعفر آباد پہنچیں گے اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری بلوچستان اور DGPDMA وزیر اعظم کو سیلاب متاثرین کی امداد اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کی گئی کوششوں پر بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کے ضلع جعفر آباد میں سیلاب زدگان سے ملاقات کے بعد حفیظ آباد، گابی خان، قادرپور اور شکارپور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ بھی کریں گے۔
اب آپ کو بتائیں کہ سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھ کر بلاول بھٹو زرداری آپ دیدہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ سیلابی صورتحال کا فضائی جائزہ لیتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کی آنکھیں بھر آئیں۔ بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں پر عالمی برادری نے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے متاثرین کی مدد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پاکستان میں سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی کیا ہے۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیڈین وزیر اعظم عوام کی طرح متاثرین کے بارے میں دکھی ہوں۔ NCRF اور ریڈ کراس کے ذریعے سیلاب متاثرین کو اشیاء ضروریہ فراہم کریں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کو خوفناک سیلاب کا سامنا ہے، ہم ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ سیلابی پانی میں لاپتہ ہونے والے افراد اور ان کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ OIC نے پاکستان میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم نے OIC رکن ملکوں سے ہنگامی امداد کی اپیل کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلامی تنظیمیں اور ادارے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہنگامی امداد کی ضرورت ہے۔ آذربائیجان نے بھی پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان کر دیا۔ آذربائیجان نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے $20 لاکھ امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر آذربائیجان نے کہا کہ امداد کی رقم سیلاب متاثرین کی بحالی اور دیگر کاموں پر خرچ کی جائے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے امداد فراہم کرنے پر آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے قبل برطانیہ نے بھی پاکستان میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے امداد کا اعلان کیا تھا۔ برطانیہ سیلاب متاثرین کے لیے 40 کروڑ 50 لاکھ روپے کی امداد فراہم کرے گا۔ متحدہ عرب امارات سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان آج سحپیر 4:30 بجے پاکستان پہنچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل پر UAE سے سیلاب متاثرین کے لیے سامان بھیجا جا رہا ہے۔ UAE سے امدادی سامان کی پہلی کھیپ لے کر طیارہ نور خان ایئر بیس پر پہنچے گا۔ UAE سے مزید 15 طیارے امدادی سامان آئندہ چند روز میں لے کر پاکستان پہنچے گے۔ امدادی سامان میں خیمے، خوراک، دوائیں اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سیلاب سے ملک بھر میں سینکڑوں شاہراہیں اور پل ٹوٹ گئے۔ NDMA کے مطابق سیلاب کے باعث ملک بھر کے 149 پلوں کو سیلاب سے نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں کوئٹہ کراچی نیشنل ہائی وے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند ہے۔ ڈیرہ غازی خان لورالائی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہے۔ گلگت بلتستان میں نلتر، غزر، شندور اور ششپر ویلی کی سڑکیں سیلاب کی وجہ سے بند ہیں۔ خوارزہ خیلہ سے پشام اور جھل کٹ تک نیشنل ہائی وے کو بند کر دیا گیا۔ پنجاب میں NA55 فاضل پور سے راجن پور تک بند ہے۔ NDMA کے مطابق سندھ میں بارشوں اور سیلاب کے باعث 2328 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں 1000 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئیں۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیلابی صورتحال کے باعث انفراسٹرکچر متاثر ہوا، اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ۔ مزید اس حوالے سے آگاہ کریں گے لاہور سے ہمارے رپورٹر جنید اشرف، جو اس وقت مشیر اطلاعات پنجاب حکومت عمر سرفراز چیمہ کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر، بتائیے گا سر کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں اور کتنا ریسکیو کا کام مکمل کر لیا گیا اور کتنا باقی رہ گیا؟ لیکن جس طرح بھی آپ کو DGPDMA نے بھی بریفنگ دی ہے یا اپنے کنٹرول روم میں بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم پچھلے 1 مہینے سے جو ہے فلڈ ریہیبلیٹیشن اور ریسکیو کے اندر جو ہے یہ پنجاب حکومت جو ہے PDMA ریسکیو ٹیمز اور چند دن پہلے تو افواج پاکستان کے جوان اور افسران بھی ساری آپریشن کے اندر شامل ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔
اور دن رات یہاں پہ جو ہے کام ہو رہا ہے. الحمدللہ کافی حد تک ویسے تو ریسکیو کا کام تقریباً ختم ہو گیا. ریہیبلیٹیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ روڈز نیٹ ورک جو تباہ ہوا, جو زمینی راستے کٹے, اس کیونکہ سپلائی چین جو ہے فوڈ سپلائی جو سپلائی چین تھی وہ بھی افیکٹ ہوئی بھی ہے. اس سے جو ہے آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کی نرخوں میں بھی ظاہر فرق پڑا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے زمینی راستہ بھی ٹھیک ہو, لوگوں کی آمد و رفت کے ساتھ ساتھ سپلائی چین بھی بحال ہو. سر اس والے سے دیکھا جا رہا ہے فلڈ سچویشن میں جو پرائسز ہیں وہ انکریز ہو رہی ہے اسینشیل کموڈیٹیز کی, انہیں کس طرح سے ٹیکل کیا جائے؟ تو آپ سے کہا نا کہ یہ بالکل ہم اس کے اوپر ہم نے اس کو نگلیکٹ نہیں کیا. ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو پرائس کنٹرول کو جو ہے بڑا اسٹرکٹلی اس کو مانیٹر کرنے کو کہا کہ کسی طور پہ بھی جو ہے ناجائز منافع خوری جو ہے وہ قابل قبول نہیں. جی بالکل, آپ نے بات سنی. عمر سرفراز شیمہ صاحب کا کہنا ہے کہ اسے نگلیکٹ نہیں کیا جائے گا اور جو بھی منافع. کوہ سلیمان سے آنے والی سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری ہیں. راجن پور میں سیلاب متاثرین کی حکومتی امداد کے منتظر ہیں. متاثرین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر نصر اللہ گبول سے. جی نصر اللہ, بتائے گا کہ متاثرین کو کیا مشکلات درپیش ہیں اور حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی بالکل, کوہ سلیمان سے آنے والے سیلابی ریلے نے فاضل پور, جام پور, راجن پور رجحان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. کچے مکانات, فصلات بھی ملیا میٹ ہو چکے سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے. تاحال کہیں پر کسی بھی قسم کے فلاحی کام شروع نہ ہو سکے. علاقوں سے لوگ رقم مکانی کر کے سیلاب متاثر روڈ کنارے کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے. انتظامیہ کی طرف سے جزوی طور پر بحالی کے کام تو شروع ہوئے, لیکن بہت بڑی تعداد بغیر خیمے اور راشن کے زندگی بسر کر رہے ہیں. جی نصر اللہ گبور, آپ کا بے حد شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان کے علاقے بستی چانڈیا میں سیلابی پانی نے تباہی مچا دی. بارش سے وڈور رود کوہی کے آنے والے سیلابی ریلے نے ایک بار پھر نشیبی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد امین کھلول سے. جی محمد امین, بتائے گا کہ وہاں پر سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ اس ٹائم ڈیرہ غازی خان وسطی چانڈیا میں موجود ہوں. وسطی چانڈیا میں سیلاب نے یہاں پر تباہی بول دی ہے. یہاں پر کافی جو گھر ہیں ان کا بھی نقصان ہو چکا ہے. یہاں کے جو ان کے راشن تھے, ان کے گھر کے سامان تھے, وہ پانی میں بہہ گئے ہیں. جن کے جو یہاں پر گندم تھی وہ بھی پانی میں بہہ چکے ہیں. انتظامیہ کی طرف سے یہاں پر کوئی ابھی تک نہیں پہنچا. یہاں پر جو بچے ہیں, جو خواتین ہیں, جو مرد حضرات ہیں, ایک شہری موجود ہے, سارا بتا سکتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر کوئی آیا ہے, آپ لوگوں کی امداد وغیرہ کی ہے؟ بھائی جان سا کو امداد کہیں نہیں کی تھی. سارے گھر بالکل تباہ تھی گئے. تھوڑے سامنے ذرا نا سارے گھر لوڑ گئے, سارے مال لوڑ گئے, سارے دانے لوڑ گئے, سامان بھی جات جتنے پیسہ کو کہیں مدد سارے نہیں کی تھی. مہربانی کر کے سارے مدد کی تھی. وجے ایک گھر انجرے تو موقع دے سرایا کڑی تو دیکھ سکتی. جے آخر جھوٹ بولی کڑوں تو ساری نہ منہ بھی بڑا نہ تسا کوئی ساری پیروی کرو. یہ سارے گھر بالکل برباد تھی گئے. تھوڑے سامنے ایسا رول گیوں. سارے نال حکومت مہربانی کر کے سارے مدد کرے اللہ واسطے. جیسے شہری کی بات سنی, شہری کا یہ کہنا ہے سیلاب کی وجہ سے یہاں پر جو ہمارے گھر تھے وہ ہستی سے مٹ چکے ہیں, زمین بوس ہو چکے ہیں. یہاں پہ جو بچے ہیں وہ بھوک کے لیے اور پانی کے لیے پیاسے ہیں. ان کی حکومت کی جانب سے یہاں پر ان کو کوئی امداد نہیں کی گئی. ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے مطالبہ ہے ہمیں یہاں پر راشن دیا جائے. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے قائم کیے گئے فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرین کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. میڈیکل ٹیمیں کیمپس میں متاثرین کو چیک اپ کے ساتھ ادویات بھی فراہم کر رہی ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے سید رسول مدنی شہر کے سب سے بڑے ریلیف کیمپ میں موجود ہیں. وہاں کا احوال ان سے جانتے ہیں. جی رسول مدنی, بتائے گا کہ وہاں پر شہریوں کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟
जी बिल्कुल, इस वक्त डेरा इस्माइल खान में जो सैलाबी सूरत हाल है, हर तरफ तबाही है। इस वक्त डेरा इस्माइल खान के अंदर बारिशें तो रुक गई हैं, लेकिन बारिशों के बाद भी सैलाबी सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मसाइल जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं। डेरा इस्माइल खान के अंदर मुतासरीन के लिए सरकारी तौर पर डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान की जानिब से और दीगर ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से जो इमदादी कैंप लगाए गए हैं, सैलाब से मुतासरा इलाकों से जो है वो इन इमदादी कैंपों में जो है वो आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा इस्माइल खान के नंबर 4 स्कूल में, और नंबर 4 स्कूल के अंदर जो है वो सरकारी तौर पर इमदादी कैंप लगाया गया है। तो इस इमदादी कैंप के जो इंचार्ज हैं इकराम साहब, उनसे बात करते हैं कि वो इस कैंप के बारे में हमें मालूमात फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ज़िली हुकूमत की तरफ से ये कैंप लगाया गया है जी। दी खान तहसील के लिए सबसे बड़ा कैंप यही है। ये पहले उधर हमने रत्ता कुलाची में इस्टेब्लिश किया था, लेकिन वहाँ पे पानी आने की वजह से दोबारा हमें यहाँ पे सारा इस्टेब्लिश करना पड़ा है। तो अभी तक जो अपडेट है हमारे पास तकरीबन 84 फैमिलीज टोटल पहुँची है, और ये टोटल नफ़र जो बन रहे हैं वो 1000 से ज़्यादा बन रहे हैं जी। इनको हम बाकायदा तौर पर जो है ना वाफिर मिकदार में खाना भी दे रहे हैं, जो कि 2 डिशेस पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा जो है ना ज़ोर की चाय वगैरह हो गई, सुबह का नाश्ता हो गया, वो हम दे रहे हैं। इनको हमने कमरे भी दिए हुए हैं, मैट्रेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। हमारी कोशिश ये है कि ये लोग लुटे पटे हुए हैं तो हम जितना भी इनको फैसिलिटेट कर सके वो कर रहे हैं जी। अच्छा इकराम साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पर इसकी निगरानी के लिए जो है सरकारी इंतजामिया की जानिब से कौन जो है इनको डील कर रहा है? इनका सरकारी इंतजाम में ये जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़ेर निगरानी चल रहा है, जिसे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर फरहान अहमद साहब देख रहे हैं, और यहाँ का फोकल पर्सन मैं हूँ इकराम बलोच, मैं गिरदावर डी खान हूँ। मुझे मुकर्रर किया और मेरा मुकम्मल तहसील का जितना भी स्टाफ है वो भी मौजूद है। इसी तरह TMA वासा वो हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं, और बाकी जो है स्कूल की इंतज़ामिया है। हम मशकूर है जनाब प्रिंसिपल आसिम जाफर साहब के, उन्होंने दिल खोल कर सारे कमरे हमारे हवाले कर दिए और अपनी इंतज़ामिया भी हमारे हवाले की हुई है। अच्छा इकराम साहब, आखिर में आप ये बताइए कि यहाँ कौन से इलाकों से कोई मतलब दूर दराज के जो मुतासरीन हैं वो किन किन इलाकों से आपके पास आए हैं? बस यहाँ पे तो जी खुले दिल से ये कैंप लगा हुआ है। यहाँ से तहसील पुरवा से भी लोग आ रहे हैं, तहसील कुलैती हथाला वगैरह के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा ये शोरकोट हो गया, मुकीम शाह हो गया, ठठा बलोचा हो गया, केच हो गया। इसके अलावा ये हमारे पास जो है अभी रात से हाजी मोरा की तरफ पानी आ गया, तो हाजी मोरा हो गया, कोटला अभी खुथी जरा बख्शा, यहाँ से लोग हमारे पास आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो आपने इकराम साहब का सुना कि इकराम साहब का कहना था कि यहाँ डेरा इस्माइल खान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से हमारे पास तकरीबन 1000 के करीब जो है वो मुतासरीन हमारे पास इस स्कूल में और इस कैंप में जो है वो आ चुके हैं, और इसके अलावा दीगर भी जो इलाका शहदाद कोट में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुसलसल बारिशों के बायस सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली इमाम बख्श जमाली रोड पर 30 फुट शुगाफ पड़ गया। मुतादिद इलाकों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद भट्टी से। जी अब्दुल हमीद, बताएगा कि शुगाफ पड़ने से कितना नुकसान हुआ? हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त शहदाद कोट के करीब इमाम बख्श जमाली रोड पे मौजूद हूँ, और ये वो रोड है जो बलूचिस्तान को मिलाने वाला रोड है। और हालिया बारिशों की वजह से, मुसलसल बारिशों की वजह से पानी का दबाव बढ़ने से इस रोड को 30 फुट चौड़ा शगाफ लगा है, और शगाफ लगने की वजह से सिंध और बलूचिस्तान का राब्ता मुनक़ता हो गया है। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और बात करते हैं इंतज़ामिया की, कि इस इंतज़ामिया इस शगाफ से लाइल्म है। इस शगाफ को 3 दिन गुजर गए हैं, मगर इंतज़ामिया ताहाल इस शगाफ पर नज़रसानी नहीं की है। और इस शगाफ को अगर बंद नहीं किया गया तो इस पानी के दबाव की वजह से शहदाद कोट को भी डूबने का खतरा है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि पानी की शदीद सतह बुलंद है, और ये रोड जाके इमाम बख्श जमाली और गंडाखा को मिलाता है। और इमाम बख्श जमाली में जो मुतअद्दिद इलाके हैं, मिठल खान भट्टी, धनी बख्श बुरोही, इलाई बख्श बुरोही और दीगर इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। और मुतअद्दिद इलाके जो ज़ेरे आब आ गए, वहाँ के इलाके मकीन की नकल मकानी जारी है। कई कच्चे मकान गिर गए हैं और कई इंसानी जानें भी ज़ाया हो गई हैं। और सैलाब मुतासरीन नहरी किनारों का रुख कर दिया है, और सैलाब मुतासरीन को हालिया बारिशों की वजह से लकड़ियाँ भीग जाने की वजह से उनकी ज़रूरती ज़िंदगी में जो खाने पकाने की चीज़ें हैं उनमें भी उनको मुश्किलात का सामना है। और इनको इस टाइम राशन और टेंट की अशद ज़रूरत है, मगर यहाँ पर इंतज़ामिया बिल्कुल लाइल्म है और दूर दूर तक। जामपुर में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, मुआशी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर। मुख्तलिफ मकामात से सड़कें सैलाबी रेलों में बह जाने से ज़िला राजनपुर का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता बहाल न हो सका। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं।
آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ جامپور میں بدترین سیلابی صورتحال، معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ مختلف مقامات سے سڑکیں سیلابی ریلوں میں بہہ جانے سے ضلع راجن پور کا ملک کے دیگر شہروں سے رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ جامپور میں بدترین سیلابی صورتحال، معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو گئیں۔ مختلف مقامات سے سڑکیں سیلابی ریلوں میں بہہ جانے سے ضلع راجن پور کا ملک کے دیگر شہروں سے رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ متاثرین اس وقت بھی حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ جامپور میں بدترین سیلابی صورتحال، معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ مختلف مقامات سے سڑکیں سیلابی ریلوں میں بہہ جانے سے ضلع راجن پور کا ملک کے دیگر شہروں سے رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ جامپور میں متاثرین جو ہیں وہ اس وقت سیلاب سے شدید متاثر ہو چکے ہیں۔ وہاں پر بدترین سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہیں۔ مختلف مقامات سے سڑکیں سیلابی ریلوں میں بہہ چکی ہیں، جس کی وجہ سے راجن پور کا ملک کے دیگر حصوں سے جو ہے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ متاثرین اس وقت بھی حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ آپ کو ہم اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جامپور میں بدترین سیلابی صورتحال، معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ مختلف مقامات سے سڑکیں سیلابی ریلوں میں بہہ جانے سے ضلع راجن پور کا ملک کے دیگر شہروں سے رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ متاثرین اس وقت حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ جامپور میں بدترین سیلابی صورتحال، معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ مختلف مقامات سے سڑکیں سیلابی ریلوں میں بہہ گئیں، جس کی وجہ سے راجن پور کا پورے ملک سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ متاثرین اس وقت بھی حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ جامپور میں بدترین سیلابی صورتحال، معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ مختلف مقامات سے سڑکیں سیلابی ریلوں میں بہہ جانے سے ضلع راجن پور کا ملک کے دیگر شہروں سے رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ جامپور میں بدترین سیلابی صورتحال، معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ ملک کے مختلف مقامات سے سیلابی ریلوں میں سڑکیں بہہ چکی ہیں اور راجن پور کا رابطہ جو ہے پورے ملک سے اس وقت منقطع ہو چکا ہے۔ متاثرین اس وقت بھی حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ جامپور میں بدترین سیلابی صورتحال ہے، معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ مختلف مقامات سے سڑکیں سیلابی ریلوں میں بہہ جانے سے ضلع راجن پور کا ملک کے دیگر شہروں سے رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ متاثرین اس وقت حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جامپور میں بدترین سیلابی صورتحال، معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ مختلف مقامات سے سڑکیں سیلابی ریلوں میں بہہ جانے سے ضلع راجن پور کا ملک کے دیگر شہروں سے رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ متاثرین اس وقت حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جامپور میں اس وقت بدترین سیلابی صورتحال ہے، معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ مختلف مقامات پر سڑکیں سیلابی ریلوں میں بہہ گئیں، جس کی وجہ سے راجن پور کا ملک کے دیگر شہروں سے رابطہ بحال نہ ہو سکا ہے۔ متاثرین اس وقت حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وہاں پر سڑکیں سیلاب میں بہہ چکی ہیں، جس کی وجہ سے متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار شیر علی خان۔ جی سردار صاحب، یہ بتائیے کہ وہاں پر سیلاب کی وجہ سے پورا جامپور جو ہے تباہ ہو چکا ہے، آپ اس سارے صورتحال پر کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ بات یہ ہے کہ جامپور صرف نہیں تباہ ہوا جی، ہمارا پورا ضلع راجن پور، صرف 2 شہر بچے ہیں، جامپور اور راجن پور جی، باقی بالکل اور محمد پور، باقی 90% ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ تباہ ہو گیا جی ہل ٹورنٹ کے پانی سے۔ اس میں کچھ تو اللہ کی طرف سے بالکل یہ آفت ضرور ہے جی، لیکن اس میں ہماری بھی کوتاہی ہیں، منتخب نمائندوں کی بھی کوتاہیاں شامل ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے 2000 یہ فلڈ آج نہیں آیا جی، صدیوں سے آتا ہے۔ 2008 میں جب ہماری حکومت بنی تھی، شہباز شریف صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے۔ 12 میں بھی فلڈ آیا تھا جی، اور 10 میں بھی فلڈ آیا تھا۔ اس وقت چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب تھے۔ ہم نے اربوں روپے کے منصوبے شروع کروائے تھے۔ ایک قطب ڈرین ہم نے بنوایا تھا 1.5 ارب روپے کا۔
इस पानी को चैनलाइज करने के लिए। हमने 3.5 अरब रुपए दिए हैं कुतुब ड्रेन के और 1.5 अरब दिया था हमने तैयब ड्रेन का। 2017 में इन ड्रेन के ऊपर काम शुरू हुआ था, जो हिल टोरेंट के पानी को चैनलाइज करके दरिया में लेके जाने का था। मतलब ये मंसूबा था हमारा। मुझे ये बताएं, 2017 में हमने काम शुरू करवाया, 20% उसका काम शुरू हुआ। 2018 में जो ही हमारी हुकूमत खत्म हुई है, वो पैसे किधर गए हैं, कौन खा गया वो पैसे? जबकि चीफ मिनिस्टर साहब इसी साउथ पंजाब के थे, मिनिस्टर इरिगेशन इसी हल्के का था जहां पे हम डूबे हुए हैं। यही जामपुर से इलेक्ट हुआ है मोहसिन लगारी साहब। किधर हैं वो लोग? 2 मिनिस्टर हमारे 3 मिनिस्टर थे हमारे इलाके के, उन्होंने काम क्यों स्टॉप करवा दिया है? आज हमारा 80% हमारा डिस्ट्रिक्ट तबाह हो गया। अगर उन बंद के ऊपर काम जारी रहता, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि अगर 1 इंच भी जमीन किसी की डूबती, हम उसके जिम्मेदार होते हैं। इन लोगों ने जानबूझ के ये तबाही की है। गुजारिश ये, 2010 में जब फ्लड आया था जामपुर में, शहबाज शरीफ साहब ने अपना एक कैंप ऑफिस एस्टेब्लिश कर दिया था जामपुर के अंदर। हमने कोई घर ऐसा नहीं था जहां पे हमने राशन ना पहुंचाए, और 10 दिन के बाद ऐसे लगता था कि यहाँ पे फ्लड ही कोई नहीं आया था। लाहौर से 21 वहाँ पर क्या इकदाम किए हैं इस वक्त? मैं इस वक्त भी, अगर आप वीडियो कॉल पे मुझे ले लें, तो मैं इस वक्त भी फाजिलपुर में मौजूद हूँ जी। इस वक्त भी मैं फ्लड इफेक्टेड एरियाज में बैठा हुआ हूँ। हम वही 2 सारे मीटिंग कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है हम अपनी तय कर रहे हैं। रात भी हमारी को 12 बजे के करीब मीटिंग हुई है। एनडीएमए सारा सामान जो है वो पीडीएमए को दे रही है, और यहाँ पे सियासी बुनियादों पे वो सामान तकसीम किया जा रहा है। क्यों भाई? ये सियासत करने का वक्त है। चीफ मिनिस्टर वहां पे बैठ के जल्द से इमरान खान की खुशामद में लगा हुआ है। आओ भाई आके देखो, यहाँ पे फाजिलपुर डूब गया, राजनपुर डूब गया, पूरा डिस्ट्रिक्ट डूब गया। तुम अपनी वहां पे चाबलूसी में लगे हुए हो। खुदा के लिए आओ देखो हमारा हाल तो शुरू कराई थी, क्या आपके दौर में मुकम्मल क्यों नहीं हुई थी जो आपने ड्रेन वगैरह बनवाई थी? आप 3.5 अरब का मंसूबा था। 2017 में इसके पैसे अप्रूव पीडीएस ने किए थे, आपके हमारे जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वालों ने किए थे हमारे पैसे अप्रूव, ये पीडीएमए वालों ने। क्या पीडीएमए कहते हैं जी, कौन सा है वो जो हमारे पैसे वगैरह रिलीज करते हैं। खैर उन्होंने ये काम, हमने 2017 में हमने काम शुरू किया। हमें क्या पता था कि ये नाअहलों की हुकूमत आती है और सारे पैसे ये करप्शन की नजर कर जाते हैं। इनसे हिसाब लेना चाहिए। 3.5 अरब रुपए कौन खा गया है? क्यों फाजिलपुर आज डूबा हुआ है? इंतजामिया कहां पे है? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं इस वक्त फाजिलपुर में फिर रहा हूं। मुखैर हजरात को अपनी मदद आपके तहत काम करें। मुझे कोई यहाँ पे सरकारी ऑफिसर नहीं नजर आया। राजनपुर जिले का 3रा बड़ा शहर है, कहां पे है सारे? चीफ मिनिस्टर लाहौर में बैठ के इमरान की खुशामद में लगा हुआ। मैं कहता हूँ आओ फाजिलपुर में बैठो, यहाँ के लोगों का हाल देखो। सर विफाक के अंदर तो आपकी गवर्नमेंट है, विफाक के अंदर नून लीग की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या इकदाम किए हैं? सुने जनाब, सुने, 18वीं तरमीम जब हुई है उसके बाद एनडीएमए डायरेक्ट किसी सूबे में ऑपरेट नहीं कर सकती। वो सारा सामान सूबाई हुकूमत को दे रही है और यहाँ पे आके वो सियासत करें। मैं इस वक्त जहां से भी लिखता हूँ, जितने भी टेंट लगे हुए सब के ऊपर एनडीएमए लिखा हुआ है। जहां पे जो रोड के ऊपर लगे हुए हैं सारे टेंट, ये तो अपनी बैठ के सियासत चमका रहे हैं, अपने लोगों को दे रहे हैं। वो डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं कर सकती। अभी भी 2 बजे शहबाज शरीफ साहब के साथ हमारी जूम पे मीटिंग है इसी राजनपुर के फ्लड के हवाले से। वो सारा शहबाज शरीफ साहब को हमने रात गुजारिश की है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अब एनडीएमए डायरेक्ट लोगों तक पहुंचे और डायरेक्ट लोगों को यहाँ पे एक्सेस दे। वरना यहाँ पे तो इंतजामिया तो सियासी बुनियादों पे सारा यह काम कर रही है कि वोट दो, कुरान शरीफ पे हाथ रखो, वोट देंगे तो आपको तंबू देते हैं, वरना तंबू ही नहीं है। जुल्म है खुदा का, नुमाइंदे नजर नहीं आते हैं यहाँ पे। 2 मिनिस्टर है सिटिंग, यहाँ एक वजीर खजाना है, उसका अशर भी आपने देखा है 2 दिन पहले अवाम ने उसके साथ क्या किया है। तो जनाब मेरी गुजारिश ये है कि चापलूसी छोड़े, ये भी मखलूक खुदा है, इसी सूबे में बस्ती है। आए परवेज इलाही साहब, खुदा के लिए पहुंचो यहाँ पे, अल्लाह को भी आपने जान देनी है। इन लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है यहाँ पे। सरदार शलील खान, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमने वक्त दिया और वहां पर हमें सैलाब की सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे थे। यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मियां चन्नू के नवाही गांव में एक नौजवान की सलाह मुतासरीन के लिए इमदाद की कोशिशें मिसाल निजी तंजीम मुहिब्बे इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन की मदद से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप लगा दिया गया। अहलियान इलाका ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मरान चौधरी से तफसीलात लेते हैं। जी मरान, बताइएगा कि वहां पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियां चन्नू के एक चक 9515 में, जहाँ पर सैलाब ज़दगान के लिए एक कैंप लगाया गया है। हमारे साथ उनके इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये सैलाब ज़दगान के लिए जो चंदा या ये सामान इकट्ठा किया गया है, ये कहाँ लेके जाएंगे और कैसे तकसीम करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर आजमाइश है, उनके ऊपर आजमाइश नहीं है, ये हमारे ऊपर आजमाइश है कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रह के अपने मुसलमान भाइयों के लिए क्या खिदमत कर सकते हैं। और हमारा जो मिशन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव वालों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और ख़ुद भी हमने अपना एक मेडिकल कैंप अरेंज किया है जिसके अंदर डॉक्टर साहिबान हैं और पूरी टीम जो है इंशाल्लाह मंडे के दिन यहाँ से जाएगी वहाँ पे रुझान में, और वहाँ पे बाकायदा हमारा कैंप लगेगा, मेडिकल कैंप होगा 2 दिन का, जिसके अंदर पूरी फैसिलिटीज़ होंगी, अल्ट्रासाउंड मशीन से लेके दवाइयाँ सब फ्री दी जाएंगी। और इंशाल्लाह ये आजमाइश जो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर है, इंशाल्लाह हम शाना बशाना खड़े हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमको ऐसी आजमाइशों से बचाए। और अभी मैं दूंगा अपने मोहतरम इमाम साहब को, जिन्होंने बहुत माशाल्लाह मेहनत की है और लोगों को मोटिवेट किया है, वो भी अपने जो है अजहार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9515L के गयूर मुहिब इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम कारकुनान और हमारे चक के नंबरदार हाजी अब्दुल रज़ाक साहिब की सरबराही में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे चक के दोस्तों और बुज़ुर्गों के तामुन से कसीर तादाद में कपड़े, बर्तन, राशन और गंदम आटा की सूरत में और मेडिकल की सूरत में, मेडिकल अद्वियात की सूरत में और बहुत सारी चीज़ें और तकरीबन 3 लाख रुपए हमारे चक के लोगों ने इस सैलाब ज़दगान के लिए, उनकी मदद के लिए हमारे मुहिब इंसानियत और हाजी अब्दुल रज़ाक साहिब को पैसे दिए हैं। इंशाअल्लाह दोस्तों की मुशावरत से हाजी साहब बता रहे थे कि रुझान के इलाके के अंदर या जामपुर या तौसा के किसी भी इलाके के अंदर वो इनकी मुशावरत से इंशाअल्लाह बरोज़ पीर को हमारा काफ़िला ट्रक जो होगा यहाँ से रवाना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तमाम चक के गयूर मुसलमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुहिब इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन का और हाजी अब्दुल रज़ाक साहिब का कि जिन्होंने ये आलम बुलंद किया और मेरे ज़िम्मेदारियाँ जो लगाईं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाहसन तरीके से उनको सरअंजाम दी। वेलकम बैक। आपको बताएं डेरा मुराद जमाली के शहरी भी सैलाब और बारिश से मुतासिर हुए, तमाम सड़कों पर पानी जमा हो गया, शहरियों का गुजरना भी महाल हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने भी हाथ खड़े कर दिए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे असलम बलोच से। जी असलम, बताइएगा वहां पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, नसीराबाद में बारिशों ने तबाही मचा दी है। नसीराबाद का डिवीज़नल हेडक्वार्टर शहर डेरा मुराद जमाली भी बारिशों से जो है मुतासिर हुआ है। इस वक्त जो है डेरा मुराद जमाली के डिवीज़नल हेडक्वार्टर ऑफिस के नसीराबाद कमिश्नर ऑफिस के बाहर में मौजूद हूँ। ये कमिश्नर ऑफिस में जो है इस वक्त भी पानी खड़ा हुआ है और सरकारी दफातर जो भी हैं तमाम पानी में वो डूब रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे हैं ताकि जो है इन ऑफिसों से पानी निकाला जाए। और जो है यहाँ पे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फुट जो है मेन शहरा पे जो है पानी खड़ा हुआ है। अदालत में भी जो है वो पानी है। SSP ऑफिस में वो भी पानी से भरा हुआ है। यहाँ पे DIG ऑफिस है। यहाँ पे जो है हेडक्वार्टर डिवीज़नल जो हॉस्पिटल है वो भी इसी शहरा से गुजर के लोग यहाँ पे जो है ना डिवीज़नल हॉस्पिटल आते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी का इंतज़ामिया जो है अमला जो है वो बिल्कुल ख्वाब खरगोश में है। वो जो है वो मनपसंद लोगों के जो है वो दुकानों और घरों से पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। यहाँ के लोगों ने जो है हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि म्यूनिसिपल कमेटी को फिलफौर जो है फ़ाल किया जाए। कंदकोट में बारिश ने तबाही मचा दी। इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई भी इकदामात नहीं उठाए गए। इंतजामिया की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली। मुतासरीन सरापाए एहतजाज। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे दीदार अली समू से। जी दीदार, बताइएगा वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताता चलूं कि मुल्क भर के तरह कंदकोट में भी बारिश ने जो तबाही मचा दी है। कंदकोट के जो पसकिरदा के इलाके हैं, तंगवानी है, बख्शापुर है, गौसपुर है और जो कच्चे के इलाके हैं वो बिल्कुल ज़ेरे आब आ गए हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई भी इक़दाम नहीं उठाए गए। कंदकोट सिटी के जो मौले हैं जिसमें ईदगाह मौला है, गुलशेर मौला है और उसके अलावा न्यू चन्ना मौला है, वो बिल्कुल ज़ेरे आब आ गए हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं, अब्दुल फहीम चाचड़ है, अमरलाल है, उनके भी घर गिर गए हैं इस बारिश के बायस। लेकिन ने ताहाल कोई इकदाम नहीं उठाए हैं। जी दीदार, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
जैकबाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बनाया गया रिलीफ कैंप मुतासरीन के लिए बेसूद, सहूलियात का फकदान, न खाना न पानी मिल रहा है, मुतासरीन सरापाए एहतजाज हैं। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि जैकबाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बनाया गया रिलीफ कैंप मुतासरीन के लिए बेसूद, सहूलियात का फकदान है, न खाना मिल रहा है न वहाँ पर पानी है, मुतासरीन इस वक्त सरापाए एहतजाज हैं। आपको हम बता रहे हैं कि जैकबाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बनाया गया रिलीफ कैंप मुतासरीन के लिए बेसूद साबित हो गया। सहूलियात का वहाँ पर इस वक्त फकदान है, न खाना मिल रहा है न ही पानी वहाँ पर मौजूद है, मुतासरीन इस वक्त सरापाए एहतजाज हैं। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि जैकबाबाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बनाया गया रिलीफ कैंप मुतासरीन के लिए बेसूद है, सहूलियात का फकदान, न खाना मिल रहा है न वहाँ पर पानी है, मुतासरीन इस वक्त सरापाए एहतजाज हैं। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि जैकबाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बनाया गया रिलीफ कैंप मुतासरीन के लिए बेसूद है, सहूलियात का वहाँ पर फकदान है, न खाना मिल रहा है न वहाँ पर पानी मौजूद है, मुतासरीन इस वक्त सरापाए एहतजाज हैं। आपको हम खबर से अपडेट करें कि जैकबाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बनाया गया रिलीफ कैंप मुतासरीन के लिए बेसूद साबित हो गया। सहूलियात का वहाँ पर फकदान है, ना खाना मिल रहा है ना वहाँ पर पानी मौजूद है। इस वक्त जो मुतासरीन हैं वो सरापाए एहतजाज हैं। आपको अपडेट करें कि जैकबाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बनाया गया रिलीफ कैंप मुतासरीन के लिए बेसूद साबित हो गया। सहूलियात का वहाँ पर फकदान है, न खाना मिल रहा है ना वहाँ पर पानी मौजूद है, मुतासरीन इस वक्त सरापाए एहतजाज हैं। आपको अपडेट करें कि जैकबाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बनाया गया रिलीफ कैंप मुतासरीन के लिए बेसूद, सहूलियात का फकदान, न खाना मिल रहा है न पानी में है, मुतासरीन वहाँ पर सरापाए एहतजाज हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गौस बख्श से। जी गौस बख्श, बताएगा कि मुतासरीन का क्या कहना है इस वक्त? जी बिल्कुल, जैकबाबाद में इस वक्त जो है कि पानी ज्यादा बहाव पानी का चल रहा है, सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन जिले इंतजामिया या सिंध गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर जो रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, वहाँ पर ना उनको खाना पीने की कोई चीजें मिल रही हैं, ना उनको वहाँ पर पानी, ना कोई ऐसी कोई सहूलियत मिल रही है। वहाँ पर जो है कि जो रिलीफ कैंपों में बैठे हुए हैं बरसात मुतासरीन, उनका दूसरे दिन से जो है कि एहतजाज चल रहा है सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन उनको ताल अब तक जो है कि कोई भी यहाँ पर ऐसा रिलीफ नहीं दिया गया है। लेकिन जो मुखर्रर हजरात हैं, जो साहिब हैसियत है, उनकी जानिब से अपनी मददात की तहत यहाँ पर जो है कि खाना पीना के राशन वगैरह वो उनको मुहैया किया जा रहा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर इनको कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया गया। जो बरसात सैलाब मुतासर यहाँ पर जिनके माल मवेशी यहाँ पर जो चले गए और जो यहाँ पर जो जिसके कच्चे मकान थे वो गिर गए, वो बेयार मददगार यहाँ पर खेमे लगाए रोडों पर बैठे हैं, उनको भी यहाँ पर राशन खाना पीना। गौस बख्श, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नौशहरा में बड़ा रेला आने की पेशगोई, इंतजामिया ने खतरे की घंटी बजा दी, मुतादिद इलाके डूबने का खतरा, मुतासरीन जो है वो इस वक्त परेशान है। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि नौशहरा में बड़ा सैलाबी रेला आने की पेशगोई, इंतजामिया ने खतरे की घंटी बजा दी, मुतादिद इलाके डूबने का खदशा, मुतासरीन इस वक्त परेशान हैं। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि नौशहरा में बड़ा सैलाबी रेला आने की पेशगोई, इंतजामिया ने खतरे की घंटी बजा दी, मुतादिद इलाके डूबने का खदशा, मुतासरीन इस वक्त परेशान हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि नौशहरा में बड़ा सैलाबी रेला आने की पेशगोई, इंतजामिया ने खतरे की घंटी बजा दी, मुतादिद इलाके डूबने का खदशा, मुतासरीन परेशान हैं। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि नौशहरा में बड़ा सैलाबी रेला आने की पेशगोई, इंतजामिया ने खतरे की घंटी बजा दी, मुतादिद इलाके डूबने का खदशा, मुतासरीन इस वक्त परेशान हैं। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि नौशहरा में बड़ा रेला आने की पेशगोई कर दी गई, इंतजामिया ने वहां पर खतरे की घंटी बचा दी, मुतादिद इलाके डूबने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। वहां के जो मकीन हैं वो इस वक्त शदीद परेशान हैं। आपको अपडेट करें कि नौशहरा में बड़ा रेला आने की पेशगोई, इंतजामिया ने खतरे की घंटी बजा दी, मुतादिद इलाके डूबने का खदशा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे माजिद खटक से। जी माजिद, बताइएगा कि सैलाब का बड़ा रेला आने का खदशा है, वहां पर जो इलाका है उसको खाली करा लिया गया है?
नौशहरा में आज भी सैलाबी सूरत-ए-हाल है। आज जो सैलाबी रैली में कल जो सैलाबी रैली में कमी आई थी, रात को एक बार फिर पानी के बहाव में इजाफा हुआ और स्वात से जो दूसरा रेला है वो 1,30,000 क्यूसेक जो सैलाबी रेला है वो 4 से 5 घंटों में नौशहरा के मुकाम पर दरिया काबल से गुजरेगा। अभी जो हालात हैं नौशहरा किला, पीरसाबाद, दागुना, मुहिब बांडा, हस्पताल कुरुना, अमानगढ़, अबाखेल, दागी खीर और दीगर जो मुतअद्दिद देहात जो है ना वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। जहाँ के वहाँ के जो मकीन है वो रेस्क्यू टीम रिकवर कर रहे हैं और महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। और पिछवाक और दूसरी जो एरिया है वहाँ के मेन जीटी रोड पर भी पानी ऊपर आ गया है। नौशहरा में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में भी मुकम्मल तौर पर पानी दाखिल हो चुके हैं। घर में 5 से 6 फुट तक पानी दाखिल हो गया है। जिला भर में इंतजामिया की जांच से जिला भर में 30 से ज्यादा रिलीफ कैंप कायम किए हैं, जहाँ पर भी बेतहाशा रश बढ़ गया है। मुतासिरीन आ रहे हैं रिलीफ कैंप में, डॉक्टर और जरूरी अद्वियात भी मुहैया की जा रही हैं और साथ साथ इंतजामिया और अपनी मदद आप और जो फलाही इदारे हैं उनकी जाने से भी खाने पीने और दीगर जो जरूरी अशिया है वो पहुंचा रहे हैं। जी माजिद, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एसपी सिटी सरफराज विर्क का सिटी डिवीजन के गिरजा घरों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। एसपी सिटी ने न्यू अनारकली, मरियम बेदाग और बादामी बाग, जोसेफ कॉलोनी समेत सिटी डिवीजन के दीगर गिरजा घरों को चेक किया। दौरान विजिट चेकिंग के अमल का मुकम्मल जायजा लिया और मुंतजिमीन जो चर्च से मुलाकात की। एसपी सिटी ऑपरेशंस ने कहा कि इबादत के लिए आने वाले तमाम अफराद को सख्त सिक्योरिटी के हिसार से गुजारा जाएगा। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि एसपी सिटी सरफराज विर्क का सिटी डिवीजन के गिरजा घरों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। एसपी सिटी न्यू अनारकली, मरियम बेदाग, बादामी बाग, जोसेफ कॉलोनी समेत सिटी डिवीजन के दीगर गिरजा घरों को चेक किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। जी वसीम, बताएगा कि गिरजा घरों के लिए सिक्योरिटी के क्या इकदाम उठाए गए हैं? देखिए, ये एसपी सिटी सरफराज विर्क जो आज सुबह से सरकारी गाड़ी पर जो है वो मुख्तलिफ गिरजा घरों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर जो पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था उनको भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। एसपी सिटी ने नौलखा में भी जो है वो चर्च का दौरा किया और न्यू नारकली, मरियम बेदाग, बादामी बाग, जोसेफ कॉलोनी समेत सिटी डिवीजन के दीगर जो है वो गिरजाघरों को चेक किया गया। इबादत के लिए आने वाले एसपी सिटी का कहना था कि तमाम अफराद को जो है वो सख्त सिक्योरिटी हिफाजत से जो है वो गुजारा जाएगा। इसी तरह से गिरजाघरों के तमाम सिक्योरिटी पॉइंट्स को भी जो है वो चेक किया गया। वहां पर मौजूद जो है वो थानेदार, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, इसके अलावा जो एसएचओ थे, तमाम को जो है वो एसपी सिटी की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और कहा गया कि पार्किंग को जो है वो गिरजाघरों से दूर मुनासिब फासला पर जो है वो बनाया जाएगा और गिरजाघरों की छतों पर मामूर एहलकार अफसरान को हाई अलर्ट रहने की जो है वो हदायत की गई है। एसपी सिटी ने बताया कि गिरजाघरों के गिरदोनवा में मशकूक अफराद पर जो है वो कड़ी नजर रखी जा रही है, जबकि थानों की गाड़ियां अपने अपने एरिया में मौसर पेट्रोलिंग जो है वो कर रही है। इसी तरह से तमाम गिरजाघरों को फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है। एसपी सिटी का कहना था कि तमाम जो है वो सिक्योरिटी की चेकिंग सीसीपीओ लाहौर और इसके अलावा डीएजी ऑपरेशन के हुक्म पर की जा रही है और सीसीपीओ लाहौर खुद जो है वो एसएचओ हजरात के साथ। आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एशिया कप टी20 में आज पाक भारत मैच में हसन अली की जगह न बन सकी। जराये के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली भारत के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 में का हिस्सा नहीं होंगे। हसन अली हफ्ते की शब पाकिस्तान से दुबई के लिए रवाना हुए और आज सुबह दुबई पहुंचे। कौमी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट हसन अली को आते ही मैच खिलाने के हक में नहीं है, जिसकी वजह से आज के मैच में हसन अली की शिरकत मशकूक है। गुज़श्ता रोज कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हसन अली को खिलाना जल्दी हो जाएगी, इसलिए वो पाक भारत मैच का हिस्सा नहीं होंगे। भारत के खिलाफ एशिया कप के स्क्वाड में फास्ट बॉलर नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन पर मुश्तमिल बॉलिंग अटैक भारत के खिलाफ प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा। कोहिनूर न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज। इधर उधर